Hello students, this is Ejaz Sir's Maths Academy, and in surface tension today we have to study angle of contact and the reason for a particular angle of contact and their properties. Let us see first what angle of contact is. Our topic is angle of contact between a solid and a liquid. So it is angle of contact between a solid and a liquid. See, suppose basically we see there are three types of liquids. There are certain liquids which completely wet the solid surface. This is a liquid. Okay, completely wetting liquid. Completely wetting liquid. This liquid completely wets the solid surface. And example is highly pure water in a glass container. In a glass container. So highly pure water in a glass container is a completely wetting liquid. What does that mean? That if you take a glass container or if you take the ordinary glass which we use to drink water, so and if you put distilled pure highly pure water into that glass and then remove water from the glass using a tissue paper or a piece of cloth, try to find if there is some water inside the glass or not. You will find that water will stick to almost entire surface of the glass surface. Means even if you remove this water, even if you remove this highly pure water from a glass container, this is a glass container. We have already written. This is a glass container and this is highly pure water. If you remove this highly pure water, even after removing this water from the glass, you will find water will still stick to the surface of the glass here. Here. You will find that water droplets will be, or not actually droplets, water will form a layer inside the glass surface. This water will still stick to the glass surface. Even if you remove the water from the glass surface, some water will be there. B is, we have taken another glass container and here the second thing is, see, completely wetting liquid, example highly pure water in a glass container. Now second we will see partially wetting liquid. Partially wetting liquid. Partially wetting liquid. What does this mean? I will explain. Let us first see its example. Kerosene in glass container. Kerosene in glass container is an example of partially wetting liquid. What does it mean? If you take kerosene, in a glass container, kerosene is taken in a glass container, you will find that even after you removed kerosene from the glass container, put some kerosene in a glass container, glass पानी पीने के ग्लास में या किसी भी ग्लास में आप मिट्टी का तेल डाल दो kerosene and remove it from the glass container after some time. After some time is 1 minute, 2 minutes, 1 second, or 2 seconds or 1 hour. Whenever you remove this kerosene from the glass container, kerosene from the glass container, you will find one thing, that pura kerosene is not could not be taken out of the container. Some kerosene will stick to the surface of the glass from inside. केरोसिन बीच बीच में कहीं कहीं ग्लास को गीला कर देगा, मतलब केरोसिन पूरी तरह खाली नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा केरोसिन जो है वो ग्लास पे चिपक जाएगा बीच बीच में.
मिट्टी का तेल कांच के बर्तन में रखे और कांच के बर्तन में से मिट्टी का तेल खाली कर दिए तो भी थोड़ा थोड़ा मिट्टी का तेल बीच बीच में कांच पर चिपका हुआ रहेगा। पूरे कांच पर हर जगह चिपका हुआ नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कहीं ड्राई होगा, कहीं नहीं चिपका, कहीं चिपका, कहीं नहीं चिपका, कहीं चिपकेगा। ठीक है। केरोसिन विल वेट द सॉलिड सरफेस ओनली पार्शियली, नॉट कंप्लीटली। वाटर जिस तरह हाईली प्योर वाटर ग्लास कंटेनर को पूरा चारों तरफ से गीला कर देता है, हर तरफ से पानी चिपक जाता है ग्लास पर, वैसा यहाँ नहीं होगा। यहाँ थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं केरोसिन ग्लास पर चिपक जाएगा और कहीं कहीं नहीं चिपकेगा। ठीक है, ये पार्शियली वेटिंग लिक्विड ऐसा करता है। अब दूसरी बात, तीसरी बात, सी। अगेन वी आर टेकिंग अ ग्लास कंटेनर, फिर से हम एक ग्लास कंटेनर ले रहे, कांच का बर्तन ले रहे और उस कांच के बर्तन में हम नॉन वेटिंग लिक्विड डाल रहे। जरूरी है कि कांच का ही बर्तन लिया जाए, कोई भी ले सकते, लेकिन एग्जांपल समझाने के लिए मुझे अच्छा लग रहा है ग्लास का एग्जांपल, तो मैं ग्लास ले रहा हूँ। नॉन वेटिंग लिक्विड। नॉन वेटिंग लिक्विड का मतलब क्या? ऐसा लिक्विड जो सॉलिड सरफेस को गीला ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल mercury in a glass container, mercury in a glass container, pure mercury in a glass container। कांच के बर्तन में हमने क्या किया? कांच के बर्तन में मर्क्यूरी ले लिया। आई होप मर्क्यूरी सबको मालूम है, थर्मामीटर, पुराने जमाने के थर्मामीटर में होता था। सो वी हैव टेकन मर्क्यूरी, प्योर मर्क्यूरी, ऐसा मर्क्यूरी जिस पर डस्ट, धूल, मिट्टी नहीं है। प्योर मर्क्यूरी को हमने ग्लास कंटेनर में ले लिया, तो वो मर्क्यूरी ऐसा सरफेस बनाएगा ग्लास के ऊपर, मर्क्यूरी ऐसा जमा हो जाएगा। दिस इज मर्क्यूरी। इस तरह, एंड दिस इज मर्क्यूरी। दिस इज मर्क्यूरी। ठीक है, ग्लास कंटेनर में मर्क्यूरी ले लिए। अब अगर एक ग्लास में मर्क्यूरी डाल दिया जाए एंड वी रिमूव मर्क्यूरी आफ्टर सम टाइम, मर्क्यूरी हम पूरा खाली कर देते हैं ग्लास में से, तो ग्लास को हर जगह कहीं हाथ लगाकर देखो, कहीं पर भी ग्लास गीला नहीं होगा, कहीं पर भी मर्क्यूरी ग्लास पर चिपका हुआ नहीं होगा। मर्क्यूरी कहीं भी ग्लास के इनर सरफेस पर, इस ग्लास के, इस कंटेनर के इनर सरफेस पर कहीं भी मर्क्यूरी चिपका हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि मर्क्यूरी ग्लास को गीला नहीं करता, ग्लास पे स्टिक नहीं होता है। ठीक है। अब देखो, जो कंप्लीटली वेटिंग लिक्विड होता है, पहले मैं आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन समझा देता हूँ, फिर हम उसका कंक्लूजन देखेंगे क्या होता है। सी, जो लिक्विड कंप्लीटली वेट करता है सॉलिड सरफेस को, जैसे ये पानी, हाईली प्योर वाटर ग्लास को पूरी तरह वेट कर रहा है, गीला कर रहा है, ऐसा लिक्विड हमेशा फ्लैट सरफेस रहेगा। उसकी मेनिस्कस, ये जो सरफेस है, द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर, इन कांटेक्ट विद एयर, इज कॉल्ड द मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड। ये मेनिस्कस है, इसकी कैसी है? मेनिस्कस। सो द मेनिस्कस इज हॉरिजॉन्टल हियर, फ्लैट मेनिस्कस। यहां पर मेनिस्कस का शेप कैसा है? सो द मेनिस्कस इज कॉन्केव अपवर्ड्स, कॉन्केव अपवर्ड, है ना, ऊपर में कॉन्केव बन रही है, कॉन्केव अपवर्ड, ब्रैकेट्स हटा देता हूं, कॉन्केव अपवर्ड्स। और यहां पर the meniscus is convex upward, convex upward, convex यानी ऊपर फूली हुई है, ऊपर की ओर फूली है, और ये अंदर की ओर धसी हुई है, और ये हॉरिजॉन्टल है। तो जो लिक्विड कंप्लीटली वेट करता है सॉलिड सरफेस को, उसकी मेनिस्कस हमेशा ऐसी रहती है। व्हाट इज मेनिस्कस बाय द वे? ये तो पता चला आप लोग को, सर मेनिस्कस का मीनिंग नहीं समझा। फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, बस इन कांटेक्ट विद
एयर एटसेट्रा। यहाँ पर एयर है बेसिकली, अगर एक में एक दो लिक्विड्स मिला दिया जाए तो उनके बीच की भी इंटरफेस बाउंड्री बन सकती है। तो द मेनिस्कस मींस द फ्री सरफेस इज हॉरिजॉन्टल, द फ्री सरफेस इज कॉन्केव एंड द फ्री सरफेस इज कॉन्वेक्स। अब ध्यान दो, ऐसा एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। मेनिस्कस का मीनिंग समझ गया आपको? ये मेनिस्कस कॉन्केव है, वो कॉन्वेक्स है, और ये फ्लैट है। मेनिस्कस यानी टॉप सरफेस। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेनिस्कस है यहाँ पर कॉन्केव अपवर्ड्स, ये देखो कर्व्ड है, तो यहाँ ये जो कर्व है इसको मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ टेंजेंट हियर। सो ये टेंजेंट आ रही, देखो, डैश 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 डैश। मैंने क्या किया, ये जो कॉन्केव मेनिस्कस थी कर्व्ड वाली, उसको टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट आपको समझती है, एक लाइन जो यहाँ से ओनली टच करके जा रही है, उसको एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पर मेनिस्कस कैसी ऊपर है, कॉन्वेक्स अपवर्ड्स है, तो ये कॉन्वेक्स सरफेस को भी मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये देखो ऐसी डैश 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 डैश, ये ऐसे बना दिया मैंने। ठीक है, फ्री सरफेस जो होती है, फ्री सरफेस, उसको हमने मेनिस्कस पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब वो टेंजेंट के बीच में और सॉलिड के बीच में जो एंगल बनता है, टेंजेंट के और सॉलिड के बीच में जो एंगल बनता है, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहाँ जो सॉलिड है और सॉलिड के और इस टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा यहाँ पर, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। ये एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट ये ऐसा बनेगा, सॉलिड के बीच में, सॉलिड सरफेस और टेंजेंट के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट बन गया, मेजर्ड फ्रॉम द साइड ऑफ द लिक्विड। उसका डेफिनेशन लिख के देता हूं मैं। तो सबसे पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट समझ गया। यहाँ देखो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा है, एक्यूट है। यहाँ पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो कैसा बनेगा, तो इस पे टेंजेंट कैसी बनेगी, सरफेस तो ये है, इस पे टेंजेंट कहाँ आएंगी, ये आएंगी टेंजेंट दूसरे कलर से। हियर द टेंजेंट विल बी लाइक दिस, डैश 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 डैश। टेंजेंट ऐसी है, और सॉलिड की सरफेस कैसी है, सॉलिड की सरफेस भी वैसे ही है ना, सॉलिड की सरफेस भी वैसे ही है। सॉलिड की सरफेस भी वर्टिकल है और टेंजेंट भी वर्टिकल है, तो यहाँ पर थीटा कितना बनेगा, थीटा विल बी 0 डिग्री। एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री रहेगा। यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा रहेगा, थीटा विल बी एक्यूट, लेस देन 90 डिग्रीज। एंड फॉर केरोसिन एंड ग्लास, केरोसिन एंड ग्लास के लिए दिस एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी 26 डिग्रीज। और यहाँ केरोसिन एंड प्योर वाटर एंड ग्लास के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी 0 डिग्री। और यहां पर मर्क्यूरी एंड ग्लास के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी 140 डिग्रीज। In some books you may find the value to be 138 degrees, but हमारी जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक है उसमें इसका वैल्यू 140 डिग्री दिया हुआ है, और मोस्ट ऑफ द बुक्स गिव दिस वैल्यू 140 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब उसका डेफिनेशन क्या है एंगल ऑफ कांटेक्ट का, वो देख लेते हैं। आपको समझ गया एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट ये सॉलिड सरफेस के और फ्री लिक्विड सरफेस को जो हमने टेंजेंट बनाए, टेंजेंट के और सॉलिड सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है लिक्विड के अंदर, वो एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो अब उसका डेफिनेशन मैं आपको लिख कर देता हूँ। देखो अपने ओन वर्ड्स में भी हम बना सकते हैं डेफिनेशन, थोड़े बड़े लेटर्स में लिखना होगा मुझे। सी एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर अ गिवन सॉलिड लिक्विड पेयर, फॉर अ गिवन solid liquid pair
सॉलिड लिक्विड पेयर पर्टिकुलर पेयर के लिए कांस्टेंट रहता है, प्योर वाटर एंड ग्लास के लिए हमेशा 0 डिग्री रहेगा। केरोसिन एंड ग्लास के लिए हमेशा 26 डिग्रीज रहेगा। थोड़ा 1-2 डिग्री का कभी हो सकता है, इम्प्यूरिटी टेम्परेचर वगैरह से चेंज हो सकता है, वो आगे हम देखेंगे। एंड मर्क्यूरी एंड ग्लास प्योर ग्लास के लिए, क्लीन ग्लास के लिए 140 डिग्री रहेगा। ठीक है, यहाँ हमने जो ग्लास लिखा ना, इट इज एक्चुअली क्लीन ग्लास, ये क्लीन ग्लास है। यहाँ पर भी ये क्लीन ग्लास है, साफ स्वच्छ ग्लास है। और यहाँ पर भी जो ग्लास लिया हमने ये क्लीन ग्लास है। इम्प्यूरिटी से एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज हो जाता, अगर ग्लास पे धूल मिट्टी बैठी होंगी तो एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होता। तो अब सुनो, एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर अ गिवन सॉलिड लिक्विड पेयर is defined as हमें दिख रहा एंगल ऑफ कांटेक्ट, अगर दिख नहीं रहा तो सुनकर लिख सकते हो आप। एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर अ गिवन सॉलिड लिक्विड पेयर इज डिफाइंड एज, अब दिखेगा आपको इधर, is defined as angle of contact for a given solid liquid pair is defined as the angle between, ये important है एक्चुअली, यहां से डेफिनेशन स्टार्ट हुई है। the angle between the solid surface, the angle between the solid surface and the tangent drawn to the free liquid surface, tangent drawn to the free liquid surface फिर से बोल रहा हूं, the angle between the solid surface, ये देखो angle between the solid surface and the tangent, और tangent किसको ड्रॉ किए, to the free liquid surface, free liquid surface पे ड्रॉ की हुई tangent। So the angle between the solid surface and the tangent drawn to the free liquid surface measured from the side of the liquid, measured from the side of the liquid, measured from the side of the liquid क्यों लिख रहे हैं? अब ये देखो यहाँ पर केरोसिन के लिए ये 26 डिग्रीज का एंगल है, तो ये ऊपर भी तो एक एंगल बन रहा है ना, वो लीनियर पेयर बनेगा। टोटल इधर राइट हैंड साइड में 180 डिग्रीज होगा, ये 26 माइनस कर लेंगे तो ये कुछ बड़ा एंगल बन जाएगा। तो हमको वो बड़ा एंगल, ये वाला एंगल नहीं देखना है, दिस एंगल इज, ये वाला एंगल नहीं देखना है हमको। ठीक है, हमारे लिए ये नीचे का लिक्विड वाला एंगल, हमारे लिए लिक्विड के तरफ का एंगल काम का है। तो व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट? Angle of contact for a given solid liquid pair is defined as the angle between the solid surface, यहाँ पर भी देखो the angle between the solid surface, ये solid surface होगी glass, the angle between the solid surface and the tangent drawn to the free liquid surface measured from the side of the liquid, liquid के तरफ से गिने। तो यहाँ पर ये एंगल कैसा है? ऑब्ट्यूस एंगल, जो लिक्विड गीला नहीं करता है। ध्यान से समझो, जो लिक्विड सॉलिड को गीला नहीं करता है उसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो ऑब्ट्यूस रहता है, हमेशा ऑब्ट्यूस रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पैराफिन वैक्स लिए मोमबत्ती और मोमबत्ती को पानी में डुबा दिए, या मोमबत्ती का ग्लास बना है, सपोज मान लो आपने मोमबत्ती को मेल्ट किया और उससे मेल्ट करके ऐसा कंटेनर बनाया, ग्लास नहीं बोल सकते, मोमबत्ती को मेल्ट करके आपने एक कंटेनर बनाया, एक बर्तन बना लिए मोमबत्ती से, आपने कैंडल से, वैक्स से आपने एक बर्तन बनाए और उसमें पानी भर दिए, तो क्या कैंडल और वैक्स एक दूसरे को गीला करते हैं? नहीं। तो इसीलिए कैंडल का वैक्स और वाटर एक दूसरे को गीला नहीं करते हैं, तो उनके लिए भी एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा रहेगा? ऑब्ट्यूस रहेगा, ग्रेटर देन 90 डिग्रीज रहेगा। और ये एंगल कैसा रहेगा? एक्यूट रहेगा, लेस देन 90 डिग्रीज रहेगा, थीटा एक्यूट रहेगा। और यहाँ थीटा हमेशा ऑब्ट्यूस रहेगा। फॉर अ नॉन वेटिंग लिक्विड थीटा इज ऑब्ट्यूस, फॉर अ वेटिंग लिक्विड, पार्शियली वेटिंग लिक्विड थीटा इज एक्यूट, एंड फॉर कंप्लीटली वेटिंग लिक्विड थीटा इज ऑलवेज 0। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिक लिक्विड्स ऐसे जो ग्लास कंटेनर को पूरा गीला कर देते हैं, तो वो
उनका एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्रीज होता है। और इम्प्योर वाटर लिया जाए, साधारण पानी जो नाले का पानी लिया जाए और नाले का पानी ग्लास में डाल दिया जाए तो 8 डिग्रीज 8 डिग्रीज का एंगल जनरली बनता है। और वो भी 8 हमेशा सेम नहीं रहेगा और टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है, इम्प्योरिटी कितनी है उसका भी इफेक्ट पड़ता है, सॉलिड सरफेस साफ है क्लीन है या इम्प्योर है उसका भी इफेक्ट होता है, और उसके ऊपर के मीडियम का भी इफेक्ट पड़ता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, और टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये वैल्यूज हमको दी हुई है। तो आप समझे कि एंगल ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आप समझ गए तो फिर हम इसका रीजन देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। शेप ऑफ द मेनिस्कस, मेनिस्कस का शेप यहाँ कैसा है, कॉनकेव अपवर्ड्स। तो जो पार्शियली वेटिंग लिक्विड रहता जिसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट रहता वो हमेशा कॉनकेव मेनिस्कस बनाता है ऐसा। जो नॉन वेटिंग लिक्विड रहता है जिसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा ऑब्ट्यूस रहता है वो हमेशा कॉन्वेक्स अपवर्ड बनाता है, ऊपर का सरफेस कॉन्वेक्स होता है, ढेरी निकली हुई होती है उसकी। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन, इसका आंसर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आप कहते हो ये समझ गया, हम इसको मिटाते हैं और हम उसका रीजन पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो अब इसका रीजन देख लेते हैं हम। Let us now study the reason behind the surfaces being concave, convex and flat। इसके पीछे रीजन क्या होता है वो देखते हैं। फिर हमको गिव साइंटिफिक रीजन का भी देखना है कि टेंट्स एंड अम्ब्रेलास जो होती है, छतरी जो होती है, छोटा छतरी अम्ब्रेला, उसके ऊपर, और जो टेंट होती है, झोपड़ी बनाने का, टेंट बनाने का जो कपड़ा मिलता है मार्केट में, उसके ऊपर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड केमिस्ट्री का AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका लेयर लगा होता है अम्ब्रेला पर। आपने देखे होंगे कोई कोई अम्ब्रेला पर सिल्वर कलर का, चांदी कलर का लेयर लगा होता है उस पर। वो क्यों रहता है, क्योंकि जो चांदी कलर का जो लेयर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो लेयर लगा होता है वो वाटर के साथ में ऑब्ट्यूस एंगल बनाता है। वाटर कैन नॉट वेट, आपको मालूम है वाटर इज इनसॉल्युबल, आपको मालूम है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। केमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे बचपन में कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पीपीटी बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है वाटर में, है ना। अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पानी में डाल दिया जाए तो उसका प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट बनने का मतलब होता है कि सॉलिड का पाउडर नीचे सेटल डाउन हो जाता है, मिक्स नहीं होता। तो जो चीज प्रेसिपिटेट बना रही है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इनसॉल्युबल इन वाटर है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, यानी वाटर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को गीला नहीं कर सकता। अम्ब्रेला पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्यों लगाते टेंट्स और अम्ब्रेला पर, ये पुराने सिलेबस में गिव साइंटिफिक रीजन था, और अभी अपनी टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन पूछा है, उसका नाम नहीं लिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, सिर्फ इतना पूछा है कि कहाँ गया ये, ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने देखा है। ऐसा क्वेश्चन, हाँ ये है ऑन पेज 38, कैन यू टेल हाउ डज अ वाटर प्रूफिंग एजेंट वर्क। वाटर प्रूफिंग एजेंट जो होता है, वाटर प्रूफिंग एजेंट एक्चुअली जरूर ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी वाटर प्रूफिंग एजेंट है, और आजकल तो डॉक्टर फिक्सिट मिलाते हैं, जो घर का जो स्लैब वगैरह होता है ना उसमें भी डॉक्टर फिक्सिट नाम का एक लिक्विड मिला देते हैं, उससे घर में सीपेज लीकेज नहीं होता, वो वाटर को आने नहीं देता। तो अम्ब्रेला के अंदर क्या कर देते हैं, अम्ब्रेला की या तो अंदर साइड से या बाहर साइड से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एक लेयर लगा देते हैं। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का लेयर क्या करता है, जब उसमें बारिश की बूंद आती है तो अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं लगा है तो वैसे अम्ब्रेला का शेप ऐसा बना होता है कि पानी घसर के गिर जाता है, अंदर नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर पानी बहुत प्रेशर से आ रहा तो थोड़ा थोड़ा फव्वारा, थोड़ा थोड़ा स्प्रे पानी का अम्ब्रेला के अंदर साइड में, नीचे साइड में भी स्प्रे आ सकता है, और उससे तो धीरे धीरे हम गीले हो जाएंगे। तो गीले होने से बचने के लिए क्या करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का लेयर अम्ब्रेला पर लगा देते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वाटर में इनसॉल्युबल है, तो जब बारिश की बूंद आती है तो बारिश की बूंद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को गीला नहीं कर सकती। जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड गीला नहीं होता वो ऑब्ट्यूस एंगल बनाता है, इसीलिए वो गीला नहीं होता, और वो गीला नहीं होता तो पानी साइड में सर के गिर जाता है और हमको गीला होने से बचा लेता है। डॉक्टर फिक्सिट भी आता है जो बिल्डिंग्स वगैरह में डालते हैं, स्लैब बनाते समय स्लैब में कंक्रीट में ये डॉक्टर फिक्सिट लिक्विड मिला देते हैं, ये भी वाटर प्रूफिंग एजेंट का काम करता है।
ठीक है, ऊपर के फ्लोर पर कहीं वॉशरूम टॉयलेट बाथरूम है, तो ऐसा ना हो कि सेकंड फ्लोर पर कोई टॉयलेट बाथरूम यूज कर रहा है और फर्स्ट फ्लोर वाले के घर में पानी गिर रहा है, तो डॉक्टर फिक्सिट डाल देते हैं, ये भी एक वाटर प्रूफिंग एजेंट है। चलो अब हम काम की बात करते हैं, ये भी काम की बात थी वैसे। डेफिनेशन दिख रही है आपको? तो अब देखो इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, कॉज ऑफ द रीजन फॉर द सरफेस बीइंग कॉन्वेक्स कॉन्केव, वो ऐसा मेनिस्कस ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या है वो देखते हैं हम। ठीक है, तो रीजन सुनो क्या है, कोई अच्छा डार्क कलर, तो रीजन देखो क्या है। अब ये हम इसको हटा देना चाहिए या नहीं, हटा देते। ये केरोसिन है, केरोसिन पार्शियली वेट कर रहा है सरफेस को, ये क्लीन ग्लास है आपको मालूम है। एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट। अब आपको ये मालूम है कि केरोसिन की सरफेस ऐसी बनी हुई है, क्या रीजन हो सकता है? क्या आप सोच सकते हो कि केरोसिन की सरफेस ऐसी क्यों बनती है? हमेशा आप भी ट्राई करके देख सकते हो, ग्लास कंटेनर में थोड़ा मिट्टी का तेल लेके देखना, सरफेस ऐसी रहेगी। मर्क्यूरी लेबोरेटरी में, वैसे आजकल लेबोरेटरी में जनरली नहीं रखते हैं क्योंकि मर्क्यूरी की जो वेपर्स होती है वो तो पॉइजनस होती है, बट बॉयल्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए मर्क्यूरी लेबोरेटरी में मिल सकता है, BOYLE, बॉयल, चार्ल्स बॉयल। तो सी ये है ग्लास, ये है बर्तन, मैंने जानबूझ के ये बर्तन को बहुत जाड़ा बना दिया, ठीक है। दिस इज अ कंटेनर, और ये कौन सा कंटेनर है? ग्लास कंटेनर, ग्लास कंटेनर। ये ग्लास कंटेनर मैंने बहुत जाड़ा बना दिया इसको, अपनी टेक्स्ट बुक में भी कुछ ऐसे ही किया है शायद इन्होंने। इसको मैं ऐसे ये लाइंस दे दे रहा हूँ ऐसी। ये ग्लास कंटेनर है, और क्या दिया है अपनी बुक ने? अच्छा, शेड किया अपनी टेक्स्ट बुक में। तो दिस इज द ग्लास कंटेनर। कुछ लोगों के घर में जाओ तो ऐसा ग्लास होता है पानी पीने के लिए, उसमें पानी कम मिलता है, पानी कम क्वांटिटी समाता है, लेकिन वो ग्लास इतना भारी होता है, हेवी, है ना। तो ये वैसा ही ग्लास है, ये बहुत भारी जाड़ा कांच है, बहुत जाड़ा ग्लास है, और उसके अंदर केरोसिन लिया हमने। अब केरोसिन कहीं कहीं पर चिपक जा रहा है, केरोसिन कहीं कहीं पर चिपक जा रहा है ग्लास में, पार्शियली वेट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि जरूर कहीं कहीं मतलब अडहेसिव फोर्स जो है वो थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है ना। कोहेसिव फोर्स अगर ज्यादा रहेगा, ये कोहेसिव अडहेसिव नाम सुने में लग रहा है ना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। मर्क्यूरी मॉलिक्यूल में आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मर्क्यूरी ड्रॉपलेट्स में, मर्क्यूरी एटम्स के बीच में, या मॉलिक्यूल्स के जो बनते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। और मर्क्यूरी और ग्लास के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो अडहेसिव फोर्स रहेगा। अडहेसिव फोर्स क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। हम ये पढ़ चुके हैं, इंक में और बोर्ड में कौन सा फोर्स है? कोहेसिव फोर्स है, सॉरी अडहेसिव फोर्स है, अडहेसिव फोर्स है, सॉरी। अडहेसिव फोर्स के कारण ये इंक मॉलिक्यूल्स बोर्ड पर चिपक गए, अडहेसिव फोर्स के कारण, है ना। वाटर ड्रॉपलेट्स में आपस में कोहेसिव फोर्स है, केरोसिन ड्रॉपलेट्स में आपस में कोहेसिव फोर्स है। कोहेसिव फोर्स इज मैक्सिमम इन मर्क्यूरी, it is a little bit less in kerosene and almost negligible in pure water. Pure water में आपस में कोहेसिव फोर्स एकदम कम रहता है, बहुत नेग्लिजिबल रहता है। चलो अब ध्यान दो, मान लो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, केरोसिन मॉलिक्यूल। हियर देयर इज अ केरोसिन मॉलिक्यूल। जानबूझ के उसको मैं बहुत जाड़ा कर दे रहा हूँ ताकि हमारे कैमरा में वो दिखाई दे। ये केरोसिन मॉलिक्यूल है सरफेस का, कॉर्नर वाला, ठीक है। ये केरोसिन मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर है, इसको हम नाम ए दे सकते हैं, उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी हम बना सकते हैं। केरोसिन मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी हमने बना दिया। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का भी डेफिनेशन आपको मालूम है, it is an imaginary sphere with the molecule as the center and molecular range of force as the radius. So ये जो molecule A है, molecule A, इस पर फोर्स लगेगा, molecule A पर फोर्स लग रहा है। अब ये केरोसिन इधर पार्शियली चिपक जा रहा है, इसका मतलब जरूर एडहेसिव फोर्स भी
ज्यादा होगा, अच्छा खासा, तो बहुत ज्यादा भी नहीं होगा लेकिन थोड़ा तो ज्यादा होगा। तो ये देखो, ये एडहेसिव फोर्स का एरो बना दिया मैंने। एडहेसिव फोर्स, रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये सरफेस जो है ग्लास की वो वर्टिकल है, तो एडहेसिव फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। और हमारी बुक ने एडहेसिव फोर्स को क्या नाम दिया है? हमारी टेक्स्ट बुक ने एडहेसिव फोर्स को नाम दिया है एपी बार। एपी, दिस इज ए से पी की तरफ, एपी बार, ए से पी की तरफ। यहाँ अगर मैं चाहूँ तो पॉइंट पी लिख सकता हूँ, ग्लास की सरफेस को पी बोल दिए। एपी बार डिनोट्स एडहेसिव फोर्स, ठीक है। एपी बार यानी ये जो ब्लैक वाला एरो है, ये कौन सा फोर्स बता रहा है? एडहेसिव फोर्स, जो कि थोड़ा ज्यादा है। जब एडहेसिव फोर्स ज्यादा रहेगा केरोसिन और ग्लास के बीच में, तभी तो केरोसिन उस पर चिपकेगा, है ना। और कोहेसिव फोर्स जो है वो कोहेसिव फोर्स भी है यहाँ पर, लेकिन कोहेसिव फोर्स थोड़ा ज्यादा है एडहेसिव से। कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से थोड़ा, कौन सा फोर्स ज्यादा होना चाहिए? एडहेसिव फोर्स ज्यादा होना चाहिए या कोहेसिव फोर्स? तो एडहेसिव फोर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा रहेगा, यहाँ थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो अगर हम इसको ऐसा बनाते हैं, यहाँ तक एडहेसिव फोर्स ज्यादा है और कोहेसिव फोर्स कम है। एडहेसिव फोर्स ज्यादा, अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा नहीं होता था तो ये केरोसिन इस पे चिपकता ही क्यों था, है ना। तो एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, इसलिए हम एडहेसिव फोर्स का एरो ज्यादा लंबा बनाएंगे। अब हम स्केलर्स एंड वेक्टर्स वाला मैथमेटिकल मेथड्स में पढ़ चुके हैं, इसीलिए 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया जाता है। तो सी, ये एरो एडहेसिव फोर्स ज्यादा है तो ये एरो लंबा बनाना, और कोहेसिव फोर्स कम है तो ये एरो छोटा बनाना। कोहेसिव फोर्स का डायरेक्शन किधर है? तो ये लिक्विड के अंदर 90 डिग्रीज में। आप बोलोगे सर इधर किधर है? क्या सिर्फ यहीं पर कोहेसिव फोर्स खींच रहा? नहीं, कोहेसिव फोर्स इधर भी खींच रहा है, इधर भी मॉलिक्यूल्स है, इधर भी खींच रहा है, लेफ्ट राइट अप डाउन। उसका जो रिजल्टेंट डायरेक्शन निकल रहा है वो रिजल्टेंट डायरेक्शन इधर निकलता है, ठीक है। और इसको कैसे पता? हमारे बुक ने सी से बताया, मेरे ख्याल से कोहेसिव फोर्स को सी से बताया है। दिस इज कोहेसिव फोर्स, ये सी। और कोहेसिव फोर्स के एरो को हम क्या नाम देंगे? एसी बार, एसी बार। वैसे भी सी है कोहेसिव, इसको एपी बार नाम दिया, एडहेसिव को देते कुछ और। तो अब यहाँ देखो, ये एरो छोटा है, जानबूझकर हमको ऐसे करना, याद रखो। क्यों? क्योंकि केरोसिन और ग्लास में कोहेसिव फोर्स, केरोसिन और ग्लास में एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, और बहुत ज्यादा भी नहीं, यहाँ बहुत ज्यादा है। इसमें एडहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो पूरा गीला हो गया ग्लास। इसमें एडहेसिव फोर्स थोड़ा ज्यादा है, इसमें एडहेसिव फोर्स कम रहेगा, कोहेसिव बहुत ज्यादा रहेगा, इसमें एडहेसिव बहुत कम रहेगा। तो सी, अब इसको हम पैरेललोग्राम बना लेंगे। तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये एरो समझ गया आप, कोहेसिव फोर्स का एरो छोटा क्यों बनाया मैंने? ये एरो क्या बता रहा है? एसी बार क्या बता रहा है? कोहेसिव फोर्स का डायरेक्शन। ये ए में इसके अंदर लिख देता हूँ, है ना, नहीं तो आप सोचोगे ये कहाँ गया। तो अब इसको हम पैरेललोग्राम बना देंगे ये ऐसा। और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स कैसे रहती? इक्वल। ये वाली साइड भी इक्वल बता देंगे हम, ये इसके इक्वल है, ये वाली इसकी इक्वल है। और आपको मालूम है पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। दो वेक्टर्स होते हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर किधर आता है हमको मालूम है। एडजेसेंट वेक्टर्स का रिजल्टेंट आएगा अलोंग द डायगोनल, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट किधर आएगा? अलोंग द डायगोनल आएगा, ये वाला ग्रीन कलर से दिख रहा है आपको, ये डायगोनल से आ गया ग्रीन कलर। और मैं इसको नाम देता हूँ आर बार, आर, ए आर बार नाम दे देंगे, शायद हमारी बुक ने ए आर बार दिया। आर यानी रिजल्टेंट, आर यानी रिजल्टेंट, सी यानी कोहेसिव और पी यानी एडहेसिव। अब ए यानी एडहेसिव होता है, लेकिन ए तो ये है, इसलिए हमारी टेक्स्ट बुक में पी यानी एडहेसिव बोला। पी एडहेसिव का डायरेक्शन है, सी कोहेसिव का डायरेक्शन है, और आर रिजल्टेंट का डायरेक्शन है, ए आर। तो अब ये रिजल्टेंट आ गया। अब लिक्विड की एक आदत याद रखो, किसी भी लिक्विड की एक आदत होती है, every liquid has a tendency to bring its surface perpendicular to the direction of resultant force।
रिजल्टेंट फोर्स जिधर भी एक्ट होता है, लिक्विड की सरफेस अपने आप को इस तरह एडजस्ट करती है कि वो रिजल्टेंट फोर्स को परपेंडिकुलर हो जाती है। मतलब यहाँ पर ये जो है, अब ये ड्रॉप को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं मैं, क्योंकि उसने बहुत जगह कंज्यूम कर लिया है। ये ठीक है, कोशिश करते हैं नहीं हटा के देखने के। ये देखो, दिस इज ये हॉरिजॉन्टल, ये सरफेस ऐसी है और ये रिजल्टेंट ग्रीन वाला है। अब रिजल्टेंट का और सरफेस का एंगल कितना बनना जरूरी है? 90 डिग्री। तो सरफेस का और ग्रीन कलर का 90 डिग्री बनाने के लिए रिजल्टेंट फोर्स का तो डायरेक्शन फिक्स रहेगा डिपेंडिंग अपॉन एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स। तो ये सरफेस ऐसी हो जाती है, जानबूझ के कॉनकेव हो जाती है ऐसी। क्यों हो गई? क्योंकि उसको रिजल्टेंट फोर्स से 90 डिग्री का एंगल बनाना था। सरफेस को क्या करना था? रिजल्टेंट फोर्स से 90 डिग्री का एंगल बनाना था, इसलिए वो रिजल्टेंट के साथ सरफेस को 90 डिग्री का एंगल बनाना था, इसलिए सरफेस ऐसी होगी कि वो रिजल्टेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बना सके। ठीक है, ये लिक्विड की सरफेस है 90 डिग्री बनाने के लिए। तो हर लिक्विड की क्या आदत होती है? रिजल्टेंट फोर्स को 90 एंगल बनाने के लिए वो अपने आप को ऐसी पोजीशन में ला लेती है। तो ये कॉनकेव क्यों हुई? क्योंकि इसको रिजल्टेंट का 90 डिग्री बनाना था, रिजल्टेंट के साथ, रिजल्टेंट फोर्स के साथ 90 डिग्री बनाना था। कोहेसिव और एडहेसिव का जो रिजल्टेंट आएगा उसके बीच में और सरफेस के बीच में 90 डिग्रीज एंगल बनाना है, इसलिए ये सरफेस ऐसी होगी। अब इस वाले में देखो बहुत इजी है। इसमें अब आप मुझे रीजन बता सकते हो क्या कि ये जो ग्लास कंटेनर है, ये ग्लास कंटेनर इसको गीला क्यों नहीं कर रहा? सॉरी, मर्क्यूरी ग्लास कंटेनर को गीला क्यों नहीं कर रहा? What is the reason that mercury is not wetting the glass surface? ग्लास सरफेस गीला नहीं हो रहा, इसके पीछे क्या कारण है? This is the glass container, ये GLASS ग्लास कंटेनर। मैं इसको हॉरिजॉन्टल ऐसे ये दे देता हूँ, सॉरी स्लैंटिंग लाइंस दे देता हूँ ताकि हमको समझ में आ जाए ये ग्लास कंटेनर है। दिस इज द ग्लास कंटेनर, ये ग्लास कंटेनर है। This is the mercury in the thin glass container. Now, you know that we have already studied that mercury is a non-wetting liquid for glass. Mercury does not wet the inner surface of glass. Mercury glass की inner surface को गीला नहीं करता। क्यों नहीं करता होगा? क्या कारण होगा ऐसा? तो उसके पीछे कारण ये है कि ये जो मर्क्यूरी है इसमें आपस में कोहेसिव फोर्स इतना स्ट्रांग है, ये आपस में इतना एक दूसरे को चिपक जाते हैं कि दूसरे को चिपकने की इनको जरूरत ही नहीं। अगर एक फैमिली में सब मेंबर्स आपस में एक दूसरे से इतना ज्यादा अट्रैक्टेड है तो लड़की या लड़का घर छोड़ के किसी के साथ भागेंगे नहीं, क्योंकि उनका आपस में ही घर में इतना अच्छा अट्रैक्शन, इतना अच्छा आपस में उनका रिश्तेदारी है। ठीक है, घर में तो खैर मैंने थोड़ा बुरा एग्जांपल दे दिया, फॉरगेट इट। तो सी मर्क्यूरी में इतना आपस में कोहेसिव फोर्स इतना अच्छा है, इतना ज्यादा है कोहेसिव फोर्स, वो एक दूसरे को इतना ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल भी ग्लास को चिपक कर रहना चाहे तो वो जो बाकी मॉलिक्यूल भागेंगे मर्क्यूरी को ग्लास खाली करोगे तो सब मर्क्यूरी उसमें से गिर जाएगा ग्लास में से, और एक आध मर्क्यूरी मॉलिक्यूल यहाँ चिपका होगा तो दूसरे वो जो भागने वाले मॉलिक्यूल वो उसको भी चिपका के लेके चले जाएंगे। यानी मर्क्यूरी ग्लास को गीला नहीं करता क्योंकि मर्क्यूरी का कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है। अब मर्क्यूरी का कोहेसिव फोर्स ज्यादा है तो मान लो यहाँ पर मॉलिक्यूल ए है, फिर से वही कहानी, यहाँ पर मॉलिक्यूल क्या है? ए है, दिस इज मॉलिक्यूल ए। ये उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना लेते हैं अपन रफ। सी मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ वो रैंडम रफ डायग्राम्स बनाता हूँ, एकदम बहुत साइंटिफिक सोच के बनाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। आप ये नहीं गिनना कि सर अभी मॉलिक्यूल बीच में स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, हर जगह रेडियस सेम होना चाहिए वगैरह वगैरह, वो सब मत सोचो। सी ये मॉलिक्यूल ए है, उसको हम नाम दे देंगे कहीं कोने कोपचे में, ये दिस इज मॉलिक्यूल ए। और इस मॉलिक्यूल ए में कोहेसिव फोर्स इधर ऊपर भी खींच रहा है, यहाँ खींच रहा है कोहेसिव फोर्स ऊपर, बिकॉज मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स तो यहाँ भी, इधर भी मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स, इधर भी, हर जगह तो सब मर्क्यूरी मॉलिक्यूल खींचे को इधर 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 इधर। कोहेसिव फोर्स के बहुत सारे डायरेक्शंस आएंगे, इधर भी इधर भी इधर भी, और वो बहुत सारे डायरेक्शंस का अगर रिजल्टेंट एक डायरेक्शन बनाएंगे तो वो रिजल्टेंट डायरेक्शन आएगा ऐसा। और ये एरो देखो मैंने कितना लंबा बनाया, कोहेसिव फोर्स का ये सी है और इसका नाम क्या हो गया अब AC बार। कोहेसिव फोर्स का एरो मैंने बहुत लंबा बना दिया और एडहेसिव फोर्स का जो एरो रहेगा वो मैं बहुत छोटा बनाऊंगा। क्यों?
क्योंकि कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है ग्लास कंटेनर मर्क्यूरी में, और मर्क्यूरी और ग्लास के बीच में एडहेसिव फोर्स कितना होता है, तो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल, हाँ यानी वही समझो बहुत कम है, इसीलिए तो गीला नहीं कर रहा ना। तो ये एडहेसिव फोर्स, ये P लिख दिया मैंने और यहाँ लिख दिया AP बार। AP बार क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ एडहेसिव फोर्स, यहाँ हर जगह लिख देते अपन। AP बार मीन्स डायरेक्शन ऑफ एडहेसिव फोर्स, डायरेक्शन ऑफ एडहेसिव फोर्स। और हम लिखेंगे AC बार। अच्छा, ये एडहेसिव फोर्स यानी रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स, रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स, एंड AC बार यानी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स। AC bar is the direction of resultant cohesive force, and R bar जो है, मेनिस्कस वगैरह नाम हटा देता हूँ मैं, AR bar क्या है, it is the resultant of resultant of AP bar and AC bar। AP बार और AC बार का जो रिजल्टेंट आएगा उसका डायरेक्शन बताना है। अब देखो यहाँ फिर से AP बार का एरो छोटा क्यों बनाया मैंने, क्योंकि एडहेसिव फोर्स कम है। AC बार का एरो लंबा क्यों बनाया मैंने, इतना लंबा एरो क्यों बनाया जानबूझकर, क्योंकि मुझे मालूम है कोहेसिव फोर्स इसमें ज्यादा है। अब मैं इसको पैरेललोग्राम बनाऊंगा, तो ये देखो, ये इसको ऐसा ले जाएंगे हम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये इधर डायरेक्शन हो गया, ये इसको मिला देंगे यहाँ पर। अब बताओ रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन किधर रहेगा, तो वी नो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो रहेगा वो इट विल बी अलोंग द डायगोनल, और डायगोनल कहाँ जा रहा है, इनसाइड द लिक्विड, केरोसिन मर्क्यूरी में जा रहा है रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर, और अभी पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या रूल बताया, किसी भी लिक्विड की आदत होती है कि वो रिजल्टेंट फोर्स को परपेंडिकुलर सरफेस बनाना चाहता है। लिक्विड कोशिश करता है कि वो लिक्विड सरफेस को परपेंडिकुलर हो जाए, लिक्विड ये कोशिश करता है हमेशा कि वो सरफेस को परपेंडिकुलर हो जाए। तो यहाँ पर ये ऐसा 90 डिग्री एंगल बना लेगा, ऐसा, ठीक है, और ये ऐसा होगा। समझ में आया रीजन क्या है, कि एवरी लिक्विड tries to make an angle of 90 degrees, every liquid surface tries to make an angle of 90 degrees with the resultant vector of cohesive and adhesive forces। ठीक है, ये हो गया पहला। वो दूसरा, अब इसमें रिजल्टेंट फोर्स किधर आता है, तो इसमें रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन, इसमें कौन सा फोर्स ज्यादा है, इसमें कौन सा फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव ज्यादा है या एडहेसिव ज्यादा है। ये पूरा ग्लास गीला हो जा रहा है, पूरे ग्लास को पानी ने गीला कर दिया चारों तरफ, तो इसमें क्या होगा, ये मॉलिक्यूल है और ये एडहेसिव फोर्स इतना ज्यादा है, ये P है एंड दिस इज AP बार, एडहेसिव फोर्स इतना ज्यादा। कोहेसिव कहाँ है, तो ये कोहेसिव, नेग्लिजिबल। अब पैरेललोग्राम बनाएंगे तो कहाँ आ रहा है, ये उसको कोहेसिव को और भी छोटा कर देता हूँ मैं। टेक्स्ट बुक ने क्या किया, कितना छोटा किया, और उसने तो दिखाया ही नहीं, बोले इतना नेग्लिजिबल है, बोले दिखता ही नहीं। दिस इज C, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा दिखने तो ना नाम के लिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, AR बार का भी डायरेक्शन किधर आएगा, ये ऐसा बनाएंगे सरफेस पैरेललोग्राम, तो AR बार भी ऐसे ही आएगा, AR बार भी इधर ही आएगा, R भी इधर ही रहेगा, ठीक है, P भी उधर ही है और R भी उधर ही है, दोनों वहीं पर है। तो इसलिए अब सरफेस क्या करेंगे, इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो सरफेस ऐसी हो जाएगी, और सरफेस कितना एंगल बनाएंगे, इससे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, दिस इज द सरफेस। अब सरफेस ऐसी है, फ्री लिक्विड सरफेस ऐसी है, फ्री लिक्विड सरफेस ऐसी है नीचे, इसमें फ्री लिक्विड सरफेस वर्टिकल है, फ्री लिक्विड सरफेस वर्टिकल है, तो इसलिए ये एंगल बन गया 0 डिग्री, क्योंकि सॉलिड भी वर्टिकल है और फ्री लिक्विड सरफेस भी वर्टिकल है। कहानी समझ में आ गई। इसी तरह हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज के लिए भी हम ऐसा बना सकते हैं, वो आप बना के एक बार ट्राई करना, ये मैं आपके लिए असाइनमेंट छोड़ता हूँ।
यहाँ पर हम रुक जाते हैं। अगर कोई भी डिफिकल्टी आई हो, कहीं कुछ आपको लगता है, तो यू हैव टू आस्क क्वेश्चन टू अंसार सर ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। एंड दिस इज एजाज मैथ्स अकेडमी। हैव अ नाइस डे।